You are all welcome in new exercise, that is exercise 32b. So this time I'm starting 32b and this is the question number 1. So in this exercise you will get the question related to area. Earlier we have done the perimeter in exercise 32a. Now this time we are starting with area, and make sure there are not only area questions but a mixture of area and perimeter. These type of questions are also asked in exercise 32b. So let us begin with the first question. The first question says find the area of rectangle whose. अब जो है यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे 4 पार्ट्स, लेंथ और ब्रेड्थ सबके दे रखी है, हमें क्या है एरिया पता लगाना है. तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ. If you are looking for the explanation of this chapter, especially this exercise 32b, so already in part 2 I have made the video on concept of area and perimeter, definitely. So that concept of area and perimeter explains the complete chapter clearly. So if you are not able to understand properly what is area or what is perimeter, so you can watch that part 2 video of mine. So in this way you will understand better before starting with this exercise. So let me begin with this exercise. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सिंपल. हमें क्या इनका लेंथ इनटू ब्रेड्थ करना है. वैसे तो मैं यहाँ अक्सर डायग्राम बनाता हूँ, बट ओवर हियर आई एम नॉट मेकिंग डायग्राम. सॉरी, सिंपली आई एम राइटिंग विद दिस फॉर्मूला. तो क्या करना है, बस मुझे यहाँ पे फर्स्ट लिख देना है. I have to copy down L is equal to 15 centimeter and B is equal to 6.4 centimeter. Always make sure, remember that you have to check out the units also. It should be centimeter, centimeter. It's meter, it's meter. And it's meter, it's centimeter, not centimeter. So over here you have to convert this 90 centimeter into meter, or you have to convert this into centimeter. 3.6 meter into centimeter. So you have to take one unit. मतलब दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी कि मीटर में लिया सेंटीमीटर में ले लिया. आपको या तो मीटर में लाना दोनों को, या आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो इट्स बेटर. ऐसे ही ओवर हियर सेम द फोर्थ पार्ट ऑफ सेंटीमीटर एंड ओवर हियर इज मिलीमीटर. सो यू हैव टू चेंज आइदर इन मिलीमीटर दोनों को, या और इन सेंटीमीटर. सो इस चीज का बहुत ध्यान दीजिएगा. मेक श्योर इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए. देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to L into B, like this. So simply 15 into 6.4. So now we have to find out the solution in rough work. Five fours are 20, 4 ones are 4. And 6 5s are 30. 6 5 are 30. 6 1 6 plus 3 9. So it's 0 6 and 9. So over here you can see the decimal is on just one place inside the number. So over here also यहाँ पे decimal आएगा. So it means 96. So 96.0, or you can say 96 centimeter. So this is your answer. Make sure over here this time I'm not writing the statements which I used to write in every question word problems. So over here because it's a very simple question, ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, तो जो है यहाँ जरूरत नहीं लग रही मुझे, इसलिए जो है मैंने स्टेटमेंट को छोड़ दिया. बाकी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, सिंपल स्टेटमेंट. Now the second part says length is equal to 8.5 meter and breadth is equal to 5 meter. Over here the units are same over here. So again हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे L is equal to 8.5 meter and your breadth is equal to 5 meter. So simply area of rectangle is equal to L into B. So L is your 8.5 meter and B is equal to 5 meter. So again 8.5 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. So 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 8s are 40, 40 plus 2 is equal to 42.
So decimal. So 42.5. So 42.5 मीटर स्क्वायर. सॉरी, इस बार जो है मैं इससे पिछले क्वेश्चन में आपको एक चीज बताना भूल गया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओवर है इट्स मीटर स्क्वायर. अब जो है जब भी हम एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी एरिया निकालते हैं हमेशा स्क्वायर लगता है. और जब व्हेन यू विल रीचिंग क्लास 7 मेक श्योर कि इसमें वॉल्यूम के क्वेश्चंस होंगे तो वॉल्यूम में क्यूब लगता है, यानी 3 लगता है यहाँ पे. तो इसका रीजन यही है कि जो है लाइक दिस, फॉर एग्जांपल 1 मीटर इनटू 1 मीटर ही है. तो हम इसे 1 तो लिखेंगे, 1 1 होता है, लेकिन जो m होते हैं यूनिट्स ये भी आपस में डबल हो जाते हैं. सो लाइक दिस इट बिकम्स, जैसे कि अलजेब्रा में होता है नहीं कि a into a इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये हमें पता है. तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने करा. यहाँ पे ये जो है कोई नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इट्स यूनिट्स, फिजिक्स की यूनिट्स होती हैं. m स्टैंड्स फॉर मीटर हो गए हैं. तो मीटर स्क्वायर का सेंस ये बनता है कि 2 बार हमने जो है मीटर को यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई किया, जबकि पेरीमीटर में ऐसा नहीं होता है. तो इसके पेरीमीटर में एक ही रहता है यूनिट. कभी भी नोटिस कीजिएगा, जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो 4 इंटू एस है, तो 4 इंटू मान लीजिए 1 मीटर ही है, तो इज इक्वल टू 4 मीटर हो जाएगा, नॉट मीटर स्क्वायर. तो मेक श्योर कि जो है एरिया में हमेशा जो है स्क्वायर लगता है. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट आंसर दैट वाज 96, सो इट इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. मेक श्योर मैंने गलती कर दी है. तो जो है 4, ये आपको जो है बहुत ध्यान देना है कि ऑलवेज यूज स्क्वायर ओवर है. और जो वॉल्यूम के क्वेश्चन आएंगे क्लास 7 में, दैट स्टैंड्स फॉर क्यूब. 3 इसमें लगेगा क्योंकि इसमें 3 बार होता है. लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 चीजें हो जाती हैं उसमें. तो उसमें जो है 3 बार यूनिट्स आएंगे, तो हमेशा 3 बार वो मल्टीप्लाई होगा. सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड. So this is the answer. Now the third part is very important because it not only consists of meter but a centimeter also. Length is equal to 3.6 meter and breadth is equal to 90 centimeter. So over here we have to convert this 90 centimeter into meter. अक्सर जो है कोशिश करनी चाहिए कि मीटर है तो दूसरे को मीटर में लिया, बजाय कि दूसरे को आप सेंटीमीटर बनाएं. बिकॉज मीटर जो है ऐसा यूनिट होता है फिजिक्स में, जो है आप धीमे धीमे आगे चल के पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में. ये मेन मीटर जो मीटर होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मेजरमेंट में मीटर सेंटीमीटर यूज होता है, मिलीमीटर भी यूज होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है मीटर को प्रेफर करते हैं. तो इससे जो है ज़्यादातर आंसर्स हम जो है मीटर में निकालने की कोशिश करते हैं. इसी तरीके से किसी चीज़ को तौलना हो, अगर वेट करना हो तो जो है किलोग्राम, ग्राम की अपेक्षा जो है किलोग्राम का हम यूज करते हैं केजी का, तो ज़्यादा बेटर होता है. चलिए मैं यहाँ पे जो है आपको इसका इधर लिखे देता हूँ मैं, और मैं आपको जो है ये भी सिखाता हूँ कि आप जो है 0.6 meter and your breadth is equal to 90 सेंटीमीटर. मैं आपको जो ये बताना चाह रहा हूँ कि जो है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सिंपल यूनिटरी मेथड का हम यूज करके हम इसको करेंगे. उस क्वेश्चन को आपको जो है जरूर शो करना है कि 90 सेंटीमीटर जो है मीटर में कैसे कन्वर्ट हुआ. आपको जो है हर हाल में शो करना पड़ेगा ये चीज. सो ओवर हियर अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कि अब जो है यूनिटरी मेथड में 2 तरीके हैं कि या तो आप ये ले लीजिए पहले या ये ले लीजिए. आपको मैं इस बार ये सेंटीमीटर ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए क्योंकि बिकॉज आई नो. और एक बार ये जरूर शो कर दीजिए सेंटीमीटर टू मीटर, एक बार जरूर शो कर देंगे तो आप इससे आपको खुद ही बहुत क्लियर रहेगा. अब जो है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 100 सेंटीमीटर ले रहा हूँ. 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. 100 सेंटीमीटर आपका 1 मीटर के बराबर होता है. तो जो आपका 90 सेंटीमीटर है वो कितने मीटर के बराबर होगा. अभी ऑलरेडी जो है 1 मीटर के बराबर है, तो आप खुद को अंडरस्टूड वाले बहुत कॉम्प्लेक्स बात है कि डेफिनेटली जो 90 सेंटीमीटर होगा वो इससे कम ही होगा. बिकॉज से यहाँ पे नंबर घट गया है तो यहाँ पर भी नंबर घटना चाहिए. तो 1 से भी नीचे जो है हमें नंबर लेना है. तो उसका तरीका यही होता है कि जब यूनिटरी मेथड में जब ये वाली चीज यहाँ पे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल वे में हम सॉल्व करेंगे. जैसे एक पेंसिल 2 रुपए की है, 2 पेंसिल 4 रुपए की हो जाएगी सिंपल वे में. लेकिन अब यहाँ उल्टा हो गया है, यहाँ पे जो है ये नंबर बढ़ गया, ये नंबर घट चुका है. तो ये नंबर जब इससे बड़ा है तो अब हम जो है उल्टा लेके चलेंगे कि ये 1 ऐसे लिख दिया हमने और इस 100 को नीचे लिया है, ऐसे करके 100 लिया है और इस 90 से ऐसे करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया लाइक दिस. दिस इज यूनिटरी मेथड. ये जो है जब आप यूनिटरी मेथड की कोशिश करेंगे मैथ्स में तब आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी. So our answer is 9/10.
सो 9/10 लिखिए। अगर 9/10 को अगर मैं वो करता हूँ, मैं डिवाइड करता हूँ इसको आपस में, तो यहाँ करने की जरूरत नहीं, इट्स वेरी सिंपल। मुझे कि 0 काट देना है, और जो है याद रखिए कि हर नंबर के जो है राइट साइड में डेसिमल रहता है, जो हिडन होता है, जो दिखता नहीं है। तो अब उस डेसिमल को हमेशा कोई भी नंबर ले लीजिए, पूरा पूरा वो नंबर है, अगर उसमें आगे जो है उसके राइट साइड में जो है हमेशा डेसिमल होता ही होता है, तो अब उस डेसिमल को हम जो है यहाँ पे ले आते हैं, इस तरह से शो कर दीजिए। सो अब जो है क्या है, डेसिमल आ गया और 9 है इस तरह से, और एक 0 लगा देते हैं शुरुआत में। ऐसे जो डेसिमल का रूल होता है 0.9, बजाय 0.9 बोलने के 0.9 बोल लीजिए, या 0.9, ये भी चीज होती है। अब जो है ये हमारा बन गया इट्स m। अब 0.9 m जो है हमारा आंसर है, तो 0.9 m को जो है हम इसे 3.6 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज योर यूनिटरी मेथड। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है आपको। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो बेटर ये होगा कि आप जो है यूनिटरी मेथड की जो चैप्टर है उसको निकालिए और उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और नहीं तो इस वीडियो को बार बार पॉज करके रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये बात कि जो है किसको कैसी चीज निकाली जाती है। नाउ वी नो दैट 90 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.9 मीटर। तो एक बार मैं इसको लिख देता हूँ फिर से एक बार। इट्स 90 सेंटीमीटर का हमें पता ही है, और बल्कि जो है 0.9 मीटर के बराबर है, इसमें इक्वल टू लगाते एक ही बात है। तो अब जो है अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L into B, यू नो दैट। सो L कितना है, L was 3.6 मीटर, और जो आपका ब्रेथ है दैट इज योर 0.9 मीटर। सो 3.6 into 0.9, ये हमें जो है सॉल्व करना है। This is a 54। मेक श्योर कि यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे दो बार जो है, यहाँ पे जो है एक बार यहाँ पे डेसिमल है, एक बार यहाँ पे डेसिमल है, तो टोटल काउंट करते हैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस पे जो है डेसिमल लगेगा। सो 2 प्लेसेस 1 2। सो मैं एक बार शो कर देता हूँ आपको। सो 3.24 जो डेसिमल यहाँ पे होना चाहिए, हिडन होना चाहिए, और यहाँ पे है। सो इट्स 3.24, जैसे कि रूल है 3.24 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर जरूर लगेगा इसमें, मेक श्योर 3.2 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर, जस्ट a look. So now it is time for last question, the fourth part. Length is equal to 24 centimeter and breadth is equal to 180 mm. तो mm मतलब मिलीमीटर होता है, तो 110 मिलीमीटर जो है आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसको भी जो है हम जो है इसे कन्वर्ट करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं कन्वर्ट। सो सबसे पहले L is equal to 24 सेंटीमीटर लिख देता हूँ मैं, एंड B is equal to 180 mm, ये हमें पता है। अब हम जो है हमें क्या है, हमें सबसे पहले जो है इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि ये जो है जस्ट एक्स्ट्रा स्टेप, लेकिन जो है इस बहाने क्या है आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। सो मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इसका सेंस यही है। ये मुझे पता है कि जो है 10 mm जो है आपका कितने के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब चूंकि यहाँ 180 mm दे रखा है हमें, तो वैसे तो मैं सेंटीमीटर इधर लिख रहा था, लेकिन मैं इसको जानबूझ के इधर लिख रहा हूँ ताकि हमारा आंसर निकल आए। तो 180 mm, तो 180 mm दे रखा है। अब 10 mm 1 सेंटीमीटर के बराबर है। हमारी ड्यूटी बनती है कि 1 mm का पता लगा लें, तो इससे और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। 1 mm जो है कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, जब 10 mm जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो 1 mm तो डेफिनेटली बहुत कम, 1 से भी बहुत कम के बराबर होगा। सो ये 10 नीचे चला जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.1। सो 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होगा 1 mm। तो 1 mm जब 0.1 सेंटीमीटर बराबर होगा, तो फिलहाल अभी मैं एज इट इज ऐसे छोड़ रहे हैं, हम इसे आगे 0.1 नहीं लिख रहे हैं। तो हमारा निकल चुका है 1 mm 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो आपको जो 180 mm है, और वो कितने के बराबर होगा भैया, आप सोचिए। यूनिटरी मेथड में बहुत सिंपल होता है। एक पेंसिल 2 रुपए की है, तो डेफिनेटली 2 पेंसिल कितने की होगी, 2 पेंसिल 4 रुपए की होगी। क्या करा आपने,
आपका जो है 2 जो रुपीज 2 है इंटू 2 कर दिया आपने, तो आपका 2 निकला है। अब 1 mm 1/10 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 180 mm कितने के बराबर होगा, इसी 1/10 में आप जो है 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज योर 180/10। सो इसको जब कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर लास्ट में 18 आएगा। 18 इज योर आंसर। सो 18 सेंटीमीटर के बराबर होगा। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने क्या करा, पहले मैंने 10 mm से 1 सेंटीमीटर लिख दिया, ये हमें पता है। और 1 mm इससे मैंने 1 mm निकाला, सो 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ये मैंने जो प्रीवियस स्टेप जब 13 पार्ट है उसमें भी ऐसा नहीं किया था मैंने, जबकि करना चाहिए, मेरी गलती है। तो 1 mm जो है आपका 1/10 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। और हमारा ये चीज यहाँ नीचे चली गई तो 1/10 बन गया। अब जो 180 mm है, इसी में जो है भाई नेचुरली जब एक चीज इतने रुपए की है तो डेफिनेटली ये कितने की होगी, तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यही तरीका अपनाया, 1/10 में बस 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 180/10 आया, 2 0 कैंसिल हो गए, 180 इसका बन गया 18 सेंटीमीटर। सो 18/1 मतलब 18 सेंटीमीटर जो है आपका 180 mm के बराबर होता है। सो नाउ अब मैं एक बार क्या करता हूँ, फिर से मैं बी को ले देता हूँ। बी 180 mm के बराबर था, ये हमें पता ही है। ये 180 mm या जो है 18 सेंटीमीटर एक ही चीज होती है, तो इस तरह से मैंने साफ साफ लिख दिया। अब हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B, L is your 24 and B is your 18। तो अब जो है हमें क्या है, दोनों सेंटीमीटर में इस समय, तो अब दोनों सेंटीमीटर में होने की वजह से अब हम आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो इट्स 24 into 18, so 8 4s are 32, 8 2s are 16, 8 4s are 32, 8 2s are 16, 16 plus 3 that is a 19। और आपका हो गया ये 24 हो गया, 1 4s are 4, 1 2s are 2, 2 हो गया 13, 1 1 2 and 4, so it's 432। सो आपका क्या आंसर है, इट्स 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज इट्स एन एरिया तो जो है स्क्वायर है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, जस्ट अ मिनट। सो हियर इज द एंडिंग ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।